Okay, in the previous video we discussed about matter. Matter is anything that occupies space and has mass, examples, and the composition of matter. Tiny particles are called molecules, which are extremely small and cannot be seen by naked eye. So matter is composed of tiny particles called molecules. These molecules were further made up of small particles called atoms. Example of a molecule was H2O, water, carbon dioxide, which is made up of carbon, one carbon atom and two oxygen atoms. Oxygen molecule itself, which is made up of two oxygen atoms, NaCl, etc. And we discussed the characteristics of matter. First was extremely small in size. The molecules of the matter are very small in size. Have spaces. The molecules of matter have spaces between them called the intermolecular space. यानी कि molecules के बीच में spaces होती है. They are in a state of continuous motion. जो molecules हैं वो continuously motion में है. They are in continuous motion. जो molecules हैं उनके बीच में spaces रहती है and they are in continuous motion. They attract each other. जो molecules हैं वो अपने एक दूसरे को attract करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, जोड़ के रखते हैं. And this force is called intermolecular force of attraction or just intermolecular force. Particular molecules are identical. किसी एक particular matter के, किसी एक particular substance के सारे molecules एक जैसे होंगे shape में, size में और mass में. Now further today we'll do states of matter. जो मैटर है वी नो डैट इट इज़ समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. नाउ वी विल डू स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में. नाउ अ सॉलिड इज समथिंग दैट हैज़ डेफिनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इसकी एक फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम है. For example, this pen, it has a particular shape and a particular volume or weight. A wooden block, a stone, a table, this pen, the phone I am recording with, this book itself, these are solids. Liquid. A liquid has a fixed volume. Liquid की volume या वजन fixed रहती है, but it does not take a definite shape. इसकी कोई definite shape नहीं है, particular shape नहीं है. Take example of water. उसको हम जिस भी शेप के कंटेनर में डालते हैं वाटर उसी शेप का हो जाता है, क्योंकि वाटर की खुद की कोई शेप नहीं होती. सो लिक्विड्स की वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहती है, बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनाइट. उनकी अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती. गैस. अ गैस हैज़ नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ डेफिनाइट शेप. ना गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना कोई उसका फिक्स्ड वजन होगा, ना उसकी कोई शेप होगी. Now we'll discuss the characteristics of these 3 states of matter one by one. First is the characteristics of solids. First is a solid has a definite shape and a distinct boundaries. ये हमने पहले डिस्कस कर लिया. Solid की एक particular shape है, fixed shape है and it has distinct boundaries. For example, sugar and salt take up the shape of the jar in which they are placed, but these are solids. जब शुगर और सॉल्ट के आप इंडिविजुअल क्रिस्टल्स देखते हो, दे आर सॉलिड इन शेप. इंडिविजुअल क्रिस्टल्स सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, उनकी पर्टिकुलर शेप और बाउंड्री है. अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम. सॉलिड की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है. सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, हाउएवर दे कैन बी हीट्ड. सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं. जब आप किसी सॉलिड चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल द पेन इज सॉलिड, इफ आई कीप इट इट इज़ एज इट इज़. वो फ्लो नहीं कर रहा, वो बह के इधर उधर नहीं जा रहा है, बट द सॉलिड कैन बी हीप्ड. लेकिन हम कई सारी सॉलिड थिंग्स को एक के ऊपर एक रख के, आसपास रख के हीप कर सकते हैं. सॉलिड्स आर रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड्स रिजिड है यानी कि हार्ड है. रिजिड मीन्स हार्ड एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. और उनको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, उनको प्रेशर अप्लाई करके दबाया नहीं जा सकता. इफ़ वी अप्लाई टू मच प्रेशर ऑफ कोर्स दे विल ब्रेक. लेकिन उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो रिजिड है, वो हार्ड है, इसलिए उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. और अगर हम कंप्रेस करेंगे देन दे विल ब्रेक. दे विल नॉट शो एनी फ्लेक्सिबिलिटी व्हाट्सोएवर.
द मास ऑफ अ सॉलिड हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज यूजुअली मोर देन द मास ऑफ अ लिक्विड और गैस. अ सॉलिड इज हाईली डेंस. जो सॉलिड का मास होता है वो लिक्विड या गैस के मुकाबले ज़्यादा होता है. द रीज़न फॉर दिस इज़ कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. वो एक दूसरे से बहुत चिपक के पैक्ड होते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और इस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, क्लोज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से द सॉलिड इज़ डेंस. वो थोड़ा सा भारी होता है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड्स और गैसेस. अगेन द पॉइंट हैज़ कम. द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. कंस्टिट्यूएंट मतलब जो मॉलिक्यूल्स उस सॉलिड के अंदर हैं वो क्लोजली पैक्ड है. लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, वो बहुत पास होते हैं एक दूसरे से और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अमंगस्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड इज़ वेरी स्मॉल. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. जो कि मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखने का फोर्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. अ सॉलिड में बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग अप टू अ हाई टेम्परेचर. जब भी आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ आइस. जब हम बर्फ़ को बाहर निकालते हैं फ्रीज़र से तो वो रूम टेम्परेचर में आके, ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके मेल्ट होने लगती है, पिघलती है और वापस वाटर बन जाती है. सिमिलरली हर एक सॉलिड को हम हीटअप करके उसको मेल्ट करके लिक्विड बना सकते हैं. एंड एवरी सॉलिड हैज़ अ पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनेगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स. A liquid has a definite volume but no definite shape of its own. लिक्विड की पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वेट है एक तरीके से, बट उनकी शेप खुद की नहीं होती. उसको हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप में रहता है. लिक्विड्स कैन फ्लो. सिंपल, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इफ़ यू पोर इट डाउन, जब आप उसको नीचे गिराते हो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग. पानी फैल जाता है, फ्लो करता है. बट इट कैनॉट बी हीप्ड. लेकिन हम पानी को इकट्ठा करके नहीं रख सकते क्योंकि वो फ्लो करेगा, फैलेगा. लिक्विड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली. हाउएवर दे कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड. लिक्विड्स को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं. नाउ लाइक आई टोल्ड यू, the molecules of a solid are closely packed together. The molecules of a liquid have some space. इन molecules में कुछ space होती है liquid के अंदर, but solid जितनी ज़्यादा नहीं और गैस जितनी कम नहीं. Let us say solid के जो molecules हैं वो सबसे ज़्यादा closely packed हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इनके फोर्सेस आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम. इसलिए जब हम इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंप्रेस करेंगे इसको, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे, पास आ जाएंगे. और जैसे ही ये पास आ जाएंगे, इनके बीच का ये गैप ख़त्म हो जाएगा. दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड फर्दर. उनको हम और कंप्रेस नहीं कर पाएंगे. बट इन द केस ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि हम उनको कंप्रेस करके, काफ़ी प्रेशर अप्लाई करके पास ला सकते हैं. सो द लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस्ड ईजली. लिक्विड को हम ज़्यादा ईजली कंप्रेस नहीं कर सकते, बस वो स्लाइटली कंप्रेस होता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है. देन नेक्स्ट, लिक्विड्स आर डेंस. लिक्विड भी डेंस होते हैं, इनका भी वज़न होता है. ट्राई पिकिंग अप अ बकेट ऑफ वाटर, तो हमें फील होता है कि बकेट हैवी है बिकॉज वाटर और द लिक्विड इन इट इज़ डेंस. नॉट एज डेंस एज द सॉलिड. लिक्विड सॉलिड जितना डेंस या भारी नहीं होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस है और सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है.
द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े लेस क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, उनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस मिलती है। It means that the intermolecular space amongst the molecules of a liquid is small but somewhat greater than that of a solid। जो intermolecular space है molecules of liquid के अंदर जो space है वो थोड़ी सी space है उनके बीच में, लेकिन solid से ज़्यादा, यानी कि solid के particles के molecules के मुकाबले liquids के अंदर ज़्यादा space होती है। The intermolecular forces in a liquid are less strong as compared to a solid but strong as compared to a gas। जो इनकी intermolecular force है molecules के बीच में वो solid के मुकाबले कम है but gases से ज़्यादा है। A liquid may be transformed into a gaseous state by heating up to its boiling point। एक liquid को हम liquid से gas बना सकते हैं उसको heat करके उसके boiling point पे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जब हम पानी को उबालते हैं तो वो स्टीम बन के, भाप बन के उठ जाता है, गैस बन के उठ जाता है। स्टीम इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस। सिमिलरली अगर हम लिक्विड को फ्रीज करेंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट पे आ जाएगा। अगेन एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वाटर बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, इट बिकम्स आइस विच इज़ द सॉलिड स्टेट। तो जिस पॉइंट पे अ लिक्विड इज़ हीटेड, जिस पॉइंट पे लिक्विड हीट होके वेपर बन जाएगा या गैस स्टेट में आ जाएगा, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड स्टेट में आएगा उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगेन इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। A gas has neither definite shape nor a shape of its own, volume nor a shape of its own। ना इसकी कोई definite volume है, ना कोई particular वजन है, ना कोई इसकी particular shape है। गैस को जहाँ भी डाल दोगे it will take the shape of that particular thing। For example, if we are sitting in a square room, जो air है, जो गैस है उस रूम में वो square shape ले लेगी। If there is a cylindrical glass on the table, तो खाली ग्लास के अंदर भी एयर आ जाएगी और वो सिलेंड्रिकल शेप ही ले लेगी। इसकी ना कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है, ना कोई डेफिनाइट अपनी खुद की शेप है। जस्ट लाइक लिक्विड्स, गैसेस कैन फ्लो एंड देयर फ्लो इज़ मच फास्टर देन द फ्लो ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की तरह गैसेस भी फ्लो करती हैं और इनका जो फ्लो है वो लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और ये मॉलिक्यूल्स ईजिली इधर उधर भाग सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे कैन फ्लो मोर ईजिली एज कम्पेयर टू अ लिक्विड। गैसेज आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले लाइटर होती है, हल्की होती है। अगेन क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बहुत स्पेस है, मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकते हैं। The constituent molecules in a gas are least closely, least means सबसे कम, least closely packed। जो molecules हैं गैस के वो सबसे कम क्लोज होते हैं, यानी कि वो दूर दूर रहते हैं, उनमें ज़्यादा स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस among us the molecules of a gas is much larger than that of a solid or liquid। Just like I told you right here, जो इन molecules के बीच में स्पेस है सॉलिड के बीच में सबसे कम है, लिक्विड्स के बीच में थोड़ी सी ज़्यादा है, अ लिटिल मोर, और गैसेस के केस में मैक्सिमम है। और इसी वजह से गैस हल्की होती है, वो इजीली फ्लो करती है और वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेती है और इसी वजह से इसकी भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन गैसेज आर एक्सट्रीमली वीक। जो मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच के फोर्सेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत वीक होते हैं। इसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कह सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और वो कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। अ गैस में बी ट्रांसफॉर्म टू इट्स लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग अप टू इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। एक गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं उसको कूल करके। Now this example is something which we see in the summers when we take a glass of cold water and it is left outside for a
फॉर सम टाइम, से अ फ्यू मिनट्स, देन वी नोटिस कि ग्लास के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के जो जम जाते हैं. दोज ड्रॉपलेट्स आर दी वाटर वेपर विच वॉज प्रेजेंट इन दी एयर. ये वो वाटर वेपर था जो एयर में प्रेजेंट था और ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से ये एयर का वाटर वेपर लिक्विड बन गया. जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विड फॉर्म पे आती है, दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉइंट. तो रिवाइजिंग सिंपली, you have the table on page 15. Please study the table properly. This is very important. एक चीज़ याद रखनी है हमने, सॉलिड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल पास पास हैं, चिपक चिपक के बैठे हैं और ये मूव नहीं करते हैं, दे ओनली वाइब्रेट. इस वजह से सॉलिड हार्ड होता है, इसकी शेप फिक्स है, इसकी वॉल्यूम फिक्स है, ये डेंस होता है और ये फ्लो नहीं करता. जब सॉलिड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है. जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड स्टेट पे आएगा, दैट इज़ कॉल्ड दी मेल्टिंग पॉइंट. लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर है, थोड़ी सी स्पेस है इनके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सॉलिड्स के मुकाबले. ये फ्लो करता है, ये अपने कंटेनर की शेप लेता है, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है. जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ा देंगे, तो वो गैस बन जाएगा. उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और जब हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो एक सॉलिड बनेगा. उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें अट्रैक्शन बहुत कम होती है, ये इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, कोई भी शेप नहीं है इसकी अपनी खुद की. ईज़िली फ्लो करता है, कंप्रेस हो जाता है ईज़िली. जब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, तब वो लिक्विड बन जाएगा. उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉइंट. सो अगेन, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो लिक्विड बनेगा. लिक्विड को आगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉईल करोगे, तो वो गैस बन जाएगा. गैस का टेम्परेचर कम कर दोगे, टेम्परेचर डिक्रीज, गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर और कम कर दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा. These characteristics should be on your tips. Now this is enough for today's chapter. The chapter is over. Please do checkpoint 2 and tomorrow we'll discuss the checkpoints and exercises.